Okay, so a very good afternoon to everyone. So you already know we have gathered here for UTI and elderly, and it would be done by EPOC, which happens to be one of our sister organizations. And from there we have Prasita as well as Ram, who would be taking on this session. And you already have, like last week, last year, I'm saying last month we had a session with Prasita on engagement for engagement also. So, without any further ado, I'll start. But just to give you a brief about both the profiles, you already know Prasita, but just to give you a brief about her, she basically oversees, she's the head of clinical operations at Epoch Homes, and she also happens to be an ex-defense personnel, having served in Indian Army as a short service commissioner and commissioned officer for overall around 5 years, and she has also been a registered nurse with more than 15 years of experience. So that's a very brief about her. And also, Prisita is responsible for high standards of care at Epoch through best global practices and has become one of the emerging care leaders in the elder care industry. At the same time, today we have Ram with us, and he is acting facility manager at Frida House, which is in Sector 70. And he's also an MSc nurse. And Ram has an experience of over around 8 years, and he's a dementia expert and did his course from Swedish Care International. So, with this, I'll just hand over it to Prasita. Just give me a moment. Okay. Prasita, please, over to you. Yeah. Sure. Thank you, Sanjana. It's always an honor to be in front of all of you. And when you people start talking, I really enjoy listening to whatever you say because there is always something new to learn from this. And today I learned about brandy. Actually, I'm from a being from an army background. I know about brandy, so it was not anything new, but I just learned that it can be given to kids also. So that was something very new information for me. Um, as Sanjana said, my name is Prasita. I'm head of clinical operations at Epoch Elder Care. Just to give a two-line brief about Epoch, Epoch is an assisted living, and what we do is that we take care of elderlies who are suffering from Alzheimer's, dementia, or any other medical issues. So we have 3 homes where we keep the elderlies with us, and they are being taken care. So being worked with elderly since so long, like I started working since last 6 or 7 years. So some of the basic things which elderly suffer, one of which is UTI, urinary tract infection. And why I have taken this topic to discuss with all of you is because sometimes this start happening, but we never come to know that this has actually occurred in our body. So what are the early symptoms of UTI and how can we prevent this? So we are going to discuss this. We will be briefing you. I have a presentation to show to all of you. In case if you have any doubt or queries, you can just let me know and we will answer your question at the last. So what is actually urinary tract infection? It is infection which can occurs in our urinary system. So our urinary system, it includes the kidney, the ureter, bladder, and urethra. So any part of this, the urinary system, if we have any bacterial infection, so that has several symptoms and which can actually cause issues and problem to us. So it occurs normally because the bacteria, it enters into our urethra and it travels to bladder and kidney. So just to show you how it does, so this is basic anatomy of our urinary system. So if you can see in the down, there is urethra. So if there is any infection, for example, if somebody is having a loose stool, loose motion, and it is not cleaned properly. So from rectum, it can travel to urethra and from urethra to bladder and then from bladder to ureter. So whenever we have any sort of infection, the body reacts to it. In the same way, if anyone is having urinary tract infection, the body will react to it. So it has certain symptoms, which we will be discussing later on. The very common thing, and the scientists, they have done a lot of research and they have now identified that it is more common in women because the women's, they have shorter urethras.
So the infection can more easily travel into their bladder. And also it has been now clear that it is more common in elderly because their immune system gets weak. So therefore the chances of infection is more in the elderly. So what are the risk factors? Who can actually have it? So anyone, any elderly who is diagnosed with dementia, with diabetes. So with diabetes, what happen is that because there is sugar in the body, more sugar in the body, so growth of bacteria it takes place in a very fast way, like as compared to the normal individual who don't have diabetes. Also, people who have urinary retention issues, somebody like some of the male elderlies, if they have prostate issues, so therefore, because of the prostate issue, there is retention of urine, which can cause infection in the elderlies. Anyone who is hospitalized and after any surgery, if they are being put on urinary catheter, so that is also a source of infection. If somebody is having bowel incontinence, so as I said that if somebody is having loose stools, so the stool, if it is not cleaned properly, so the feces can travel to urethra and then it can cause issues. The other thing is something like surgery around the bladder, any type of surgery, like it can be kidney or it can be of gallbladder, it can be of spleen. So sometimes some injury or infection, if it occurs internally, this can also cause urinary tract infection. Kidney stone, very common. It can also cause urinary tract infection. And last and very important, if we are not maintaining our proper perineal hygiene, like if after going urine, we are not washing or we are not drying it properly, so this can lead to urinary tract infection. So Ram, can I request you if you can explain about the risk on impact of aging on infection? Yeah, so ma'am, thank you. So, namaste all of you. I'm Ram, acting facility manager of Frida House in Goa. So, impact of aging on infection. So, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडीज में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है, ऑर्गन चेंजेस, एज रिलेटेड डिजीज, तो उसके कारण यूरिन इन्फेक्शन बढ़ने के कुछ चांसेस हो जाते हैं हमारे पास हमारी बॉडीज में. सो फर्स्ट वन इज इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो इम्यूनिटी जो है वो कम होती जाती है. उम्र के साथ इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है. ऑर्गन चेंजेस जस्ट लाइक उम्र के साथ जो हमारी ह्यूमन बॉडीज होती है उसके ऑर्गन्स में चेंजेस आ जाते हैं. जैसे कि स्किन है तो स्किन की जो लेयर है उसकी जो प्रोटेक्शन जो पावर होती है उसमें थोड़ा सा कमी हो जाती है. नेक्स्ट है ब्लैडर. सो ब्लैडर की जो स्किन होती है उसमें चेंजेस होते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ. सो जो यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है वो उसको बढ़ा देता है. एज रिलेटेड डिजीज जस्ट लाइक कैंसर, डायबिटीज, वॉइडिंग ऑफ डिसफंक्शन, दैट मीन्स कि यूरिन को क्या कह सकते हैं कि यूरिन को बाहर निकालने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. वॉइडिंग ऑफ डिसफंक्शन एंड डिक्रीज मोबिलिटी. एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हम देख सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, लंबे समय तक किसी हॉस्पिटल्स में अगर आप एडमिट हैं तो वहाँ से भी आपको इन्फेक्शंस आते हैं. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में लंबे समय तक हैं. एंड मेडिकल प्रोसीजर जैसा कि प्रसिद्ध हमने बताया कि ब्लैडर के पास कुछ सर्जरीज वगैरह अगर कुछ हुई हैं तो उसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकते हैं. टिपिकल सिम्टम्स ऑफ यूटीआई इन एल्डरलीज. सो दैट मीन्स कि उम्र दराज लोगों में दिखने वाले कुछ लक्षण होते हैं. वो है यूरिन दैट अपीयर्स क्लाउडी और डार्क, यानी कि यूरिन जो है वो क्लाउडी और उसमें से बदबू आने लगती है. एंड ब्लडी यूरिन, यूरिन में ब्लड आना. स्ट्रॉन्ग और फाउल स्मेलिंग, फ्रिक्वेंट एंड अर्जेंट नीड, यानी कि बार बार पेशाब आएगा. और यूरिन के साथ बर्निंग सेंसेशन होंगे. और लोअर एब्डोमेन में अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो लोअर पेल्विस में आपको प्रेशर फील होगा. एंड फीवर जो है आपको 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है. स्वीटिंग्स, शेकिंग और चिल्स एंड कंफ्यूजन एंड चेंजेस इन बिहेवियर, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एल्डरलीज में हम नोटिस करते हैं यूरिन इन्फेक्शन में. कैन यू गो नेक्स्ट स्लाइड? Yeah, thanks, Ram. So this was what we explained about our normal elderlies, what happens to them. In case if the elderly is having dementia,
सो बेसिकली डिमेंशिया इज एन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, एंड द वे वी एक्सप्रेस वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, हमारी वोकैबुलरी चली जाती है, इमोशंस हम जाहिर नहीं कर सकते. सो फॉर ए नॉर्मल एल्डरलीज, आप या हम हैं, तो हमें अगर कुछ इश्यू हो रहा है तो वी कैन एक्सप्रेस इट कि हमें पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है या पैर में दर्द है. बट विद डिमेंशिया इट इज लाइक वो नहीं बता पाएंगे कि उनको क्या हो रहा है. सो बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, सो रात में एकदम आराम से सोते हैं एल्डरलीज, और सुबह होके एकदम से उनके मूड में चेंजेस हो जाता है, काफी गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बात करना बंद कर दिया है. So first thing which we do is that we think it can be a UTI, because dementia resident में UTI के symptoms बिल्कुल different होते हैं. So whenever our loved one who are suffering from dementia, they show following symptoms, so you have to be cautious that it can be UTI. So some of the thing are agitation, गुस्सा ज्यादा करते हैं, restlessness रहता है, concentrate नहीं कर पाते कहीं पे, even they can have like fever, they will be feeling weakness, उनको खाना खाना एकदम से बंद कर देंगे, और urinary incontinence होगा, डायपर पहनने से मना करेंगे, और they will be like continuously crying. So these are some of the typical symptoms which the elderly residents suffering from dementia and UTI they show. So we have to be extra cautious कि अगर हमें में से किसी को भी ऐसी कुछ issues हो रहे हैं, हमारे घर में अगर कोई elderly residents हैं जिनको dementia diagnosed है, so we have to be careful and we have to immediately do a urine test for them. So how this the diagnosis is done? हमें ये जितने भी हमने symptoms अभी देखे, if any one of is having the following symptoms, the first thing you have to go is you have to do a urine routine test. It costs 100 rupees. Urine routine test में आपको pus cells दिखेंगे. So pus cells means it is आपको infection है. Normal pus cell is 1 to 2. अगर उससे ज्यादा होता है, so that means you have an infection. If it is shown that pus cells ज्यादा है, then you have to go for a urine culture test. यूरिन कल्चर टेस्ट कैसे होता है कि उसमें इट विल कम्स कि कौन सा बैक्टीरिया इज ग्रोइंग इन योर यूरिन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लाइक क्लेप्शियला है, ई कोलाई है, सो डिफरेंट होते हैं. जो हमारा यूरिन कल्चर का रिपोर्ट आता है दैट इज इन वेरी डिटेल. उसमें लिखा होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है और कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो रिएक्ट करेगा. So let me just show you a sample of the report. ऊपर आएगा E. coli, Klebsiella, and then there will be a list of antibiotic. Resistant, sensitive. अगर resistant है तो amoxicillin आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा. Then you have to go for other medication. तो जहाँ जहाँ S लिखा है वो medications is going to affect. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि nitrofurantoin है, then ceftriaxone है. So then doctor will prescribe only these medication which are sensitive. So this is easily you will get in your urine culture report. And what is eye? Eye is intermittent, like वो हो भी सकता है and नहीं भी हो सकता, in between. So we don't consider that, but we consider only sensitive medications. In case if हमने urine के सारे टेस्ट कर लिए, रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन इफ एनीथिंग इज नॉट स्पेसिफिकली शोन इन दैट, मे बी सम ऑर्गेनिज्म आएगा, उसके बाद फिर वी कैन गो फॉर अ यूएसटी, अल्ट्रासाउंड जा सकते हैं, और वी कैन गो फॉर अ सीटी स्कैन एंड एमआरआई. सो अल्ट्रासाउंड इज द बेसिक थिंग जो नॉर्मल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं टू सी कोई चेंजेस हैं क्या ब्लैडर में. सो अगर इन्फेक्शन हैज इंक्रीज, सो देयर यू विल सी सम स्वेलिंग अराउंड द ब्लैडर और यूरेटर. सो वो चीजें हम एमआरआई, सीटी स्कैन या यूएसजी में विजुअलाइज कर सकते हैं, बट ये बहुत लेटर ऑन है, व्हेन द इन्फेक्शन हैज लाइक गॉन बियॉन्ड द ट्रीटमेंट, तब आप ये चीजें जो है करते हैं. अदरवाइज नॉर्मली यूरिन कल्चर के रिपोर्ट में आ ही जाता है कि इफ यू हैव एनी इन्फेक्शन और एनीथिंग. इफ देयर इज अ वेरी ह्यूज लाइक सम वेरी बिग इशू, देन वो यूटीआई एमआरआई सीटी स्कैन से डायग्नोज होने के बाद समटाइम्स द डॉक्टर आल्सो दे डू सिस्टोस्कोप टू जस्ट विजुअलाइज अंदर डाल के. सो इट्स अ स्मॉल ट्यूब डालते हैं जिसमें कैमरा लगाता है, जस्ट टू विजुअलाइज कि अंदर के ऑर्गन्स हाउ इट इज डूइंग, वेदर इट हैज द इन्फेक्शन हैज कॉज टू अदर ऑर्गन्स, जो आसपास के ऑर्गन्स है उसमें हो गया है, कि वेदर इट इज स्प्रेड टू किडनी. सो दैट कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन. बट द बेस्ट थिंग इज, जैसे ही आपको सिम्टम्स हो रहा है, गो फॉर अ यूरिन रूटीन और अ यूरिन कल्चर टेस्ट. सो दैट इज द बेस्ट थिंग. नाउ व्हेन यू हैव द रिपोर्ट, so normal there are some medications which is mentioned here.
but this is just for just for understanding, but never take a medication on your own. आपके यूरिन रूटीन के रिपोर्ट्स एंड यूरिन कल्चर के रिपोर्ट्स के हिसाब से ही द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू द मेडिकेशन विच यू हैव टू गो थ्रू. सो इट इज बीइंग स्टार्टेड विद ओरल मेडिकेशन. हमेशा ओरल मेडिकेशन से स्टार्ट किया जाता है, एंड यू हैव टू ड्रिंक लाइक लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर. इन केस इफ द आपके रिपोर्ट में आ रहा है कि जो बैक्टीरिया ग्रो किया है, सो यू कैन सी द नंबर ऑफ कॉलोनीज that has grown there. अगर number of colonies are more, तो oral medication is not going to work. Then you have to go for a IV antibiotics. So उसके लिए probably either you have to get hospitalized, or you can you can take home care service जिसमें the nurse will come and put the antibiotics. So UTI is not a very small thing, because if it is not treated initially, you can land up to the hospital. So ये बच्चों से लेके middle age, elderly सब में होता है. So we have to be very extra cautious. So there are some prevention rules which Ram will be explaining. Ram, over to you. Thank you, ma'am. So UTI जो है वो अगर हमारे साथ बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कुछ प्रिवेंशन है जिनको हम घर पे इजीली करके हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. So इसमें कुछ है कि चेंजेस ब्रीफ्स, डायपर्स प्रॉम्प्टली एंड फ्रीक्वेंटली, हमें समय समय पर जल्दी डायपर चेंज करना चाहिए. एंड एनकरेज फ्रंट टू बैक वाइपिंग एंड क्लीजिंग, यानी हमारा जो पेरिनियल एरिया है उसको हमें फ्रंट टू बैक वाइप करना चाहिए और उसे ड्राई रखने के लिए कोशिश करना चाहिए, एंड एरिया को एकदम क्लीन रखने की कोशिश करना चाहिए. एंड सेट रिमाइंडर्स फॉर सम पीपल्स दैट हु हैड मेमोरी इम्पेयर्ड, यानी कुछ हैं जिनको अगर मेमोरी इम्पेयर्ड की कंप्लेन है तो उन्हें हमें रिमाइंडर सेट करके रखना चाहिए और समय समय पर वॉशरूम के लिए याद दिलाना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ लिक्विड जूस, यानी कि हमें दिन में 24 घंटे में कम से कम 8 to 10 ग्लास वाटर जो पानी है और साथ में लिक्विड्स हम इसके ले सकते हैं. एंड ऐसे ड्रिंकिंग क्रैनबेरी जूस और यूज ऑफ क्रैनबेरी जूस ये हम ले सकते हैं. ये हमारे यूरिन को इंक्रीज करते हैं, यूरिन कैपेबिलिटीज को, क्रैनबेरी जूस, बट नॉट इफ एल्डर पर्सन फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन्स, यानी कि वो लोग जिनको स्टोन की कंप्लेन है वो क्रैनबेरी जूस को ना लें और डॉक्टर की सलाह से ही लें. और एल्कोहल्स, जो कैफीन है, अल्कोहल है और कॉफी जो होती है वो ब्लैडर को इरिटेबल करते हैं, सो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए. और वेयरिंग कॉटन अंडरवियर्स एंड चेंजिंग वंस इन अ डे. सो ये कुछ प्रिकॉशन है जिन्हें हम लेकर के यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू. Okay, so this was in brief about UTI, all the things. If you have any doubt or queries, so we are happy to answer that. Can you, ma'am, repeat on culture urine test? Yeah, sure. So urine culture reports, urine culture जो report investigation हम भेजते हैं. So a person who comes to collect, they give us a sterile bottle. We have to collect the urines. Preferably, it is the morning urine sample. Mid urine sample we have to give. The reports come in 3 days. 3 दिन में जब वो reports आता है. So the report will be shown. Ram, do you have any urine culture report with you? In your system? I will check in mails. हाँ, if you can just check. So how the urine report is shown, you will see all the demographic data of the person, the elderly, and then there will be which organism is there. So as I said, there are different type of bacterial infections. So it can be E. coli, Klebsiella, जो भी होता है, and then there will be a list of medications and the medication which is sensitive and which is not sensitive. So everything will be written. So doctors, what they do is they go through this culture report. उनको जो लगता है which is more sensitive. So medication के आगे भी there is a ratio written, like 1:100, 1:200. So they see कि कौन सा medication ज़्यादा effective है, and then they prescribe the medication. So this is basically why we do the culture. Culture is actually very useful. Urine sample has to be Sorry. तो सीता जी, हाँ जी सर. जो 3 दिन मिलते हैं उसमें क्या करे आदमी? 3 दिन के बाद शुरू करते हैं ना मेडिसिन? No. So what happen is normally आपने यूरिन कल्चर रिपोर्ट दे दिया, उससे पहले आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी है.
तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आप यूरिन कल्चर क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपके यूरिन रूटीन में ऑलरेडी पस सेल आ चुके हैं। तो आपका यूरिन कल्चर का रिपोर्ट देने के बाद नॉर्मली डॉक्टर जो है निफ्ट्रान करके एक टैबलेट होता है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उससे आपके सिम्टम्स कम होने लगते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। जो भी आपके सिम्टम्स हो रहे हैं एवरीथिंग विल बी फाइन। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपनी मर्जी से नहीं लीजिएगा, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लीजिएगा। बट मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है लो डोज। वो तो प्रसीता जी सिम्टम को सप्रेस करेगी ना, इन्फेक्शन तो बढ़नी शुरू हो गई ना, वो 3 दिन में इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। नहीं, जब आपका यूरिन का रिपोर्ट नॉर्मल रूटीन रिपोर्ट आ जाता है उसके बाद से एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाता है, बट दैट इज माइल्ड डोज। माइल्ड डोज में एंटीबायोटिक आपका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब आपका कल्चर रिपोर्ट आता है, आप जिससे सेंसिटिव होते हैं उससे फिर फ्रेश ट्रीटमेंट शुरू होता है। ओके। ये एक फ्रीक्वेंसी जो यूरिनेशन की रात के टाइम की है, उसको अगर रिड्यूस करना हो तो एक तो लिक्विड पानी का मतलब इनटेक कम होना चाहिए। इसके अलावा एनीथिंग एल्स, कैन वी होल्ड द यूरिन ड्यूरिंग द नाइट इफ यू डोंट वांट टू गेट अप फॉर द बेड? If you hold the urine, then it will again cause infection, because that is going to store in the bladder and it is going to be very uncomfortable. आप सो नहीं पाओगे। तो बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली आपको अगर कुछ प्रॉब्ली आप यू कैन चेक फॉर योर मेडिकेशन की किसी मेडिकेशन से भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। अगर डायबिटीज है तो उससे भी बढ़ जाती है, या फिर इफ यू आर अ कार्डियक पेशेंट तो डाइटोर, लासिक्स ऐसे मेडिकेशंस चलते हैं जिनकी वजह से यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो उसका टाइमिंग्स चेंज कर सकते हैं सम मेडिकेशंस का। एंड व्हाट वी डू इज कि हमारे पास कुछ रेसिडेंट्स होते हैं वो आर कंप्लीटली फाइन, लेकिन रात में यूरिन की वजह से उनको उनकी नींद खराब हो जाती है। तो व्हाट वी डू इज, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बहुत ज्यादा है तो वी सजेस्ट देम टू वियर अ डायपर एट नाइट, विच इज अगेन अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर हम डायपर भी काफी कंटिन्यूअस पहनेंगे, बट जस्ट फॉर अ सम पीरियड ऑफ टाइम कि हम देखें कि उनका स्लीप उससे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वी सजेस्ट देम। अदरवाइज वी मेक सम टाइमिंग, जैसे कि 2 बजे रात को कोई जा रहा है और जाके उनको उठा के यूरिन करवा दे रहा है, तो वो 2 बजे किया और फिर सो गए। अच्छा, one question I have, my husband's water intake is restricted. He cannot take more than a liter. So naturally, there will be chances of UTI, something like that. Yeah, so liquid intake is one thing, but उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, like personal hygiene and prostate issues, diabetes, उन सबको कंट्रोल करके हम we can prevent urine infection. Because I understand अगर water intake कम है specifically for kidney issue elderlies, so उसमें we have to take care of other preventive measures, and because kidney issue अगर होता है so immunosuppressants में हम होते हैं, so we have to be like extra careful about not getting infection. Okay. I have seen here एक चीज और बताइए जरा, ये जो पानी पीने के बाद कितना टाइम लगता है यूरिन फॉर्म होने के लिए? जैसे ही अगर आप लोग पानी लेते हैं उसके हाफ एन आवर बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है बनने का, यूरिन बनने का शुरू हो जाता है। एंड देयर इज सम एक्चुअली हाफ आवर में कितना यूरिन बनना है उसका भी एक मेजरमेंट होता है, आई डोंट रिमेम्बर दैट अभी, लेकिन समथिंग इज देयर, दिस मच ml ऑफ यूरिन हैज टू बी फॉर्म। अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब अवर किडनी इज नॉट वर्किंग, बट नॉर्मली हाफ एन आवर के अंदर यूरिन इट स्टार्ट वर्किंग। तभी हम अगर कभी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं और वो हमें उस टाइम पे ही बोलते हैं कि आप पानी पियो और ब्लैडर फुल करो, सो हाफ एन आवर के अंदर हमारा 1 घंटे के अंदर ही हमारा पेट जो है वो ब्लैडर हमारा फुल हो जाता है। सो यूरिन इज वर्किंग, जैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है वैसे, जैसे हमारा हार्ट काम करता रहता है वैसे हमारा किडनी भी काम करता रहता है। तो जैसे जैसे वाटर इनटेक जाता है वो बनाने लगता है। मैम, I also want to add little one. Yeah, output is depend on the body weight. Urine output is depend on the body weight, और ये हर ह्यूमन बॉडीज के लिए अलग अलग होता है कि उनका 1 घंटे में कितना आउटपुट आएगा, कितना यूरिन बनेगा। सो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है वो पर kg per ml in hour, Yeah, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट।
या इन केस अगर हम पानी नहीं भी लेते हैं, जैसे अगर हमारा जो किडनी इश्यूज जिनको है उनकी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो किसी दिन हम बाहर गए और हमने वाटर इनटेक नहीं लिया ठीक से, तो जो हमारे बॉडी में जितना फ्लूइड होता है वो भी किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कभी कभी सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, एंड जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं या फिर डिजीनेस हो जाता है। सो इसीलिए पानी इनटेक, बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं पानी अपना लेके जाइए एंड यू कीप ड्रिंकिंग। So this has to be taken care, and also while using the public washroom जब हम बाहर जाते हैं, so अभी तो काफी sprays आते हैं जो हम डाल के हम कमोड या anything we can use, but make sure कि आप अपने साथ अपना टिश्यू, अपना वेट वाइप्स, अपना ड्राई वाइप्स आप लोग लेके रख रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि 6 घंटे की जर्नी हो और उसमें हमने यूरिन पास किया, हमने वॉश किया एंड हमने उसके ऊपर ही अपना अंडरवियर पहन लिया, एंड जो हमारा पेरिनियल एरिया है वो पूरे टाइम वेट रहेगा, जिसकी वजह से वो 6 घंटे में बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगी। तो वी हैव टू केयरफुल अबाउट इट। तेज अंकल, यू हैड एनी क्वेश्चंस? ये जो यूरिन टेस्ट देना फॉर द कल्चर, व्हिच पार्ट ऑफ द यूरिन शुड बी गिवन एज सैंपल फॉर द कल्चर टेस्ट? व्हिच टाइम? नो, मिडस्ट्रीम या मिडस्ट्रीम। सो मिडस्ट्रीम इज आप यूरिन थोड़ा सा पास कर लीजिए, उसके बाद जो यूरिन आ रहा है वो आप उसमें दे सकते हैं। इन केस अगर यूरिन रोकने में इशू है या फिर आपको लग रहा है कि ड्रिप हो जाएगा, तो आप नॉर्मल यूरिन दे सकते हैं, बट प्रेफरेबल यही होता है कि आप मिड स्ट्रीम दें। Routine tests also can be carried with the same sample? Yes, it can be done with the same sample. आप एक ही बॉटल में दे दीजिए, वो दोनों उसी से ही कर लेंगे। You can just tell your technician. That is not an issue. अच्छा, एक चीज बताइए, if there is no any other problem like diabetes or anything, what is the normal number of times urination during night? So basically it's 2 times normally. 2 times. Yeah, 2 times, but it also depends. सबकी body differ होती है, the way your kidney works, the way my kidney works, it is different. मतलब अगर if everything is working normal, say kidneys or function also normal, no other disease, then what is the normal time, number of times? So this is 2 times. If you have like a very good sleep, तो आप सो गए एक बार, फिर आप सुबह ही उठोगे, तो फिर you will not go and pass urine. So it can be 1 to 2 times. In case if you are getting up at the time of sleeping and then getting up, not in between. Yeah, so in between if you are getting up, so you will pass urine 1 more time. Otherwise आपने पास करके आप लेट गए, आप रात को 8 बजे लेटे हो, आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आपकी स्लीप बहुत अच्छी है, तो आप सुबह फिर 5 o'clock ही उठ के आप you will pass urine. अगर ज्यादा टाइम आए तो? सॉरी, अगर इससे ज्यादा टाइम आए तो, 3-4 दफा आए तो? वो वही चीज मैंने बताया था कि अगर उससे ज्यादा आ रहा है, सो वी हैव टू सी कि क्या चीज है। हम टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि कहीं हमें यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ये चीजें हो सकती है, ब्लैडर इश्यूज हो सकते हैं, प्रोस्टेट इशू हो सकते हैं, या फिर हम कोई दवाइयों पे हो सकते हैं। तो वी हैव टू फिगर आउट कि क्या इशू हो रहा है, अंडरलाइन कॉज क्या है कि इतनी बार यूरिन आ रहा है। मिस्टर, एक चीज और बताओ, जैसे रात को यूरिन के लिए आप पास करने के उठते हो और उसके बाद should you take water to probably supplement the urine that you have passed, or should there be no need for water to be taken? So it depends. मैं अगर रात में उठती हूँ, if I go and pass urine, I take water. मुझे लगता है कि I need water, so I take it. So it depends. अगर आपको प्यास लग रही है तो definitely take it. इसका कोई scientific reason नहीं है, पर आप ले सकते हो। Is it advisable to take water? It is. You can take it. Like एक घूंट पीने में कोई हर्ज नहीं है, आपका गला गीला हो जाएगा and you can sleep comfortably. एक दो घूंट पिए ना, Yes. So it is like psychologically also कि हम उठे हैं तो हमने एक घूंट पानी पी लिया। ज्यादा पिएंगे तो you will again wake up and to pass the urine. कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि रात को पानी पीने से आपका जो स्टोमक है थोड़ा अपसेट हो जाता है। That drinking water, when the body is absolutely, at rest, पानी का बॉडी के अंदर जाना जो है कितना ठीक है कितना गलत है वो?
सो सी रात में जो लिक्विड इंटेक है, पानी का इंटेक, वैसे भी वो कम ही बोलते हैं कि आप कम लीजिए। इट डिपेंड्स कि आप खाना खाने की कितनी देर बाद पानी पी रहे हैं, क्योंकि किसी किसी को अगर हमने खाना खाया और इमीडिएटली हम पानी पीते हैं, उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक स्टमक अपसेट हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करता है, इंटरफेयर कर देता है। तो इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आपने खाना खाया है उसके हाफ एन आवर बाद आप पानी पीजिए। तो आप अगर वैसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इश्यूज नहीं होने चाहिए। अदरवाइज पानी पीने के बाद अगर आपको गैस्ट्रिक अपसेट या स्टमक अपसेट हो रहा है, सो देन यू हैव टू चेक फॉर योर वाटर प्योरिटी। आप अपना आरओ एक बार चेक करवा लीजिए, मे बी हो सकता है कि उसके फिल्टर में कुछ इशू है एंड इट इज कॉजिंग सम इन्फेक्शन। I think आपके एडवाइस was better than a doctor. I can come more frequently. Sanjana, please call me. Yes, sure. We would love it. So actually, Prasida, I'm just jumping in here. One of the elders just messaged me. Her question is basically focused on how many times an elder should basically go, like, urinate in a day. Like, is there some kind of prescribed thing or something, or like इससे ऊपर होता है तो मतलब गड़बड़ हो रही है कुछ body में, there is a sign of something. Because according to her, if she goes a lot of time, what happens? She gets a lot of back pain and everything. Yeah, so would love to answer this. So for many elderlies, the bladder, it gets weak. So कई बार होता है कि we can't hold the urine for a longer period. जैसे राम was telling कि हमारी स्किन एज के साथ हमारी स्किन में चेंजेस आता है, वैसे ही हमारे ब्लैडर के मसल्स काफी वीक हो जाते हैं। तो जितना यूरिन एक यंग पर्सन और मिडिल एज पर्सन होल्ड कर सकता है, उतना एक एल्डरली होल्ड नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से वो यूरिन की फ्रीक्वेंसी उसकी वजह से भी बढ़ जाती है, बिकॉज वो होल्ड नहीं होता। आपने पानी पिया, फिर आपको यूरिन लगा, फिर आपने पानी पिया, फिर आपको यूरिन लगा, क्योंकि किडनी तो काम कर रही है बट उसको जो रोक के रखने वाला बैग है वो काम नहीं कर रहा है। सो अब वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन कितनी बार होना चाहिए, वो डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कौन कितना पानी कंज्यूम करता है उसके हिसाब से ही है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी कैसी है। बट अगर आपको लग रहा है कि आप आधे घंटे में 3 या 4 बार जा रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज एन इशू। Then you have to see a GP, a general physician, or you have to do a urine test. But otherwise, अगर आप elderlies में 1 घंटे में या 2 घंटे में आप एक बार जा रहे हो, that is okay, that is completely fine. सिर्फ रेनी सीजन में ज्यादा प्रॉब्लम होता है या बहुत सर्दी के दिन में? This happens. So this is somewhat psychological also. थोड़ा ठंड में हमको यूरिन ज्यादा लगती है, और समर में बिकॉज हमारा जो लिक्विड होता है वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाता है, तो इसलिए यूरिन फॉर्मेशन भी लेट होता है। बट विंटर में और रेनी सीजन में जितना हम लेते हैं, ये जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब उतना नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हमें एक्सक्रीट करने का ज्यादा टेंडेंसी होता है कि हमें यूरिन जाना है। So this is common. This is not related to UTI, but this is a common thing. रात को अगर 1-2 बार उठना पड़ जाता है, फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती, फिर उसके बाद फिर ऐसा लगता है बार-बार जा 1-1 घंटे बाद जाओ। तो दिन से मेरे साथ ऐसा हो, नींद डिस्टर्ब। मैं इसलिए रात को ना कोशिश होती है कि 11, 11:30, 12 बजे सोऊं कि मुझे उठना ना पड़े। कई बार नहीं आई नींद तो उठना पड़ जाता है, फिर नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। आंटी, ये सेम इशू मेरी मम्मी को भी था कि वो एक बार अगर यूरिन पास करने के लिए उठती हैं, उसके बाद फिर उनको नींद नहीं आती है। बट फिर हमने उनकी थोड़ी स्लीपिंग हैबिट थोड़ी ठीक की कि आप 9-10 बजे आप मोबाइल अपना हटा दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, आप लेट जाओ, उसके बाद आप सोने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में हमें उन्हें मेडिकेशन देनी पड़ी, अभी शी इज सेटल्ड, लाइक शी इज ओके। सो वो 9-10 बजे अगर आपकी स्लीप साइकिल शुरू हो जाएगी, इनफैक्ट आप बीच में हो सकता है एक बार उठेंगे, आप एक बार उठ के यूरिन पास करेंगे और फिर आप सो सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको दिन की अपना दिनचर्या वो ठीक करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिजी। बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं सोऊं ना, कि रात को स्लीप अच्छी आए। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, नहीं सोती। अगर कभी सोना है बड़ा 5 और 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। अगर लग गई यहाँ तो अदरवाइज, पर 2 दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, नींद नहीं आती, नींद नहीं है। बस वॉकिंग करते हैं आंटी? अब नीचे तो जाने ही नहीं देते बच्चे, अभी फिलहाल तो नहीं, घर में ही अंदर बाहर बस ऐसे ही होते रहते हैं। घर का काम? हाँ, वो पूरा प्रॉपर करती हूँ। हाँ, तो आप अपने आप को जितना थका दोगे दिन में, अगर आप वॉकिंग खैर अभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप घर में ही कहीं बालकनी में चक्कर काटे, तो वो जितना थकावट होगा उससे ही फिर आप सोओगे। एक तो अभी कोविड की वजह से, बिकॉज हम में से कोई भी वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, तो घर पे बैठ के वो
कितना हम थकेंगे, हम ज्यादा थक नहीं पाते, उसकी वजह से भी हमें रात में जो है नींद हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं इसलिए 11 साढ़े 11 तक टीवी देखती हूँ कि मेरी आंखें भारी हो जाए और मैं एकदम सो जाऊं। पर 2 दिन से, अदरवाइज मैं सो रही थी, पर 2 दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ। टीवी में क्या देखते हैं? सीरियल ऐसे सीरियल्स मत देखिए, उससे और टेंशन होती है कि अगले कल के एपिसोड में क्या होगा। मैं कोई ऐसे हल्के फुल्के देखती हूँ, मैं कोई ऐसे वो ड्रामे भी नहीं देखती, ना नेगेटिव नहीं देखती, नेगेटिव बिल्कुल नहीं मैं देखती। नहीं तो नई नींद आई तो मैं अपना मोबाइल पे सत्संग लगा के आंखें बंद करके, मैंने ऐसे लगता है पूरी रात मैं ऐसे ही आंखों में ही, अगर मुझे कोई ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंट हो तब सोती हूँ, अगर इतना भी ड्रॉप भी ऐसे हल्का सी खट हो, मैं ऐसे लगेगा कि मैं जाग रही हूँ पूरा रात। मैंने आज भी पूरी रात करीबन 3-4 बजे मैं सत्संग सुनती, एक खत्म हुआ, दूसरा 2 बार यूरिन भी पास कर आई, फिर भी नहीं, बस अभी भी आंखें ऐसे भारी हैं। आंटी तो फिर उसके लिए फिर आप किसी एक फिजिशियन को देख लीजिए, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हेल्प करती हैं। आप उसके आदी नहीं हो गए, एक बार आपकी नींद ठीक हो जाएगी फिर आप उसको छोड़ सकते हो। तो ऐसी दवाइयां भी आती हैं जो आप खा सकते हो, वो काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर आप रात में सोओगे नहीं तो फिर आपका दूसरा दिन खराब हो जाएगा। थकावट रहती है सुबह, फिर वीकनेस लगती है, नींद सी आती है। तो आप एक बार किसी फिजिशियन को देख सकते हो, वो प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। 1 महीने लेके देखिए, ठीक लगेगा। डॉक्टर नायर, मैं यूटीआई इंफेक्शन हुआ था, मेरे को हो गए 3-4 महीने। उन्होंने जो दवाइयाँ दी थी यूरिकाइन केएम, ये शशि, ये तो मैं ले रही हूँ। एंटीबायोटिक दी थी उन्होंने, पता नहीं वीवैक्ट डीसी है ये, अरे ये ड्रेसेस है, ये इनमें से पता नहीं कौन सी दवाई है जो मेरे को सूट नहीं करी। अच्छा, तो आपको क्या हुआ उससे? आपको कुछ मतलब एलर्जी हुआ? अजीब सा लगता था, पेट में दर्द। तो आपने फिर कंसल्ट किया, आपने उन्हीं डॉक्टर से बात किया? नहीं, मैं दोबारा जा नहीं पाई, मैंने पूछा आपसे ही पूछ लूं। फिर मैंने ये खानी बंद कर दी थी, और इनमें से पता नहीं कौन सी है, मैंने ये दोनों ही बंद कर दी। लेकिन आपको ये कब प्रिस्क्राइब की थी? आपको डोज तो कंप्लीट करना। 3 महीने हो गए। कितना हो गया? 3 महीने हो गए हैं, पर मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है यूटीआई की। मतलब थोड़ा सा कभी मतलब क्रीम लगाती हूँ, एंटी वॉश भी यूज कर रही हूँ। नहीं आंटी, इन्फेक्शन तो अंदर है ना, तो वो ऊपर से हम क्रीम वगैरह कुछ लगाएंगे तो उससे नहीं होगा ठीक। संजना, कैन यू ऑर्गेनाइज एनीथिंग? ज्यादा है, इंसुलिन पे हूँ, 9.8 आई थी। तो काफी ज्यादा है। 2-3 टाइम इंसुलिन लेती हूँ, पर फिर भी कंट्रोल में नहीं है। ओके। एक्चुअली क्या है, मैं सर्कोडाइसिस की वो पेशेंट हूँ, मुझे स्टेरॉइड लेनी पड़ती है डेली। उसकी वजह से ही मेरे को डायबिटीज हुई है। मेरे को वैसे डायबिटीज नहीं थी, उसी की वजह से ही हुई है, उसी से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। या नहीं, मैं समझ सकती हूँ, अभी फिर काफी तकलीफ में हो गए आप। बिना स्टेरॉइड के मैं उठ नहीं सकती बिल्कुल। जी। संजना, आप एक रिव्यू करवा सकते हैं इनके साथ आपका? या नहीं, आपके यहाँ के जो मैं अनिता आंटी, आपकी ईआरएम कौन है? करम ढिल्लो। करम है, ठीक है, फाइन, I'll speak to करवा देना। हाँ, करम से मैं बात करती हूँ। यूरिन का अगर फ्लो इम्प्रूव करना हो तो पीपल से ग्लास ऑफ बियर वुड बी वंडरफुल। बियर इज अ डायूरेटिक। तो जैसे मेडिकेशंस होती हैं, लासिक्स होता है और डाइटोर करके मेडिकेशंस होते हैं, वैसे ही बियर होती है। अगर आप बियर पियोगे तो आपका यूरिनेशन जो है वो ठीक होता है। तो नॉर्मली जिनको किडनी स्टोन होता है, ऐसे बोलते हैं कि आप बियर लेने से ठीक होता है, क्योंकि उससे निकल जाता है, फोर्स आपका ज्यादा होता है। तो बियर वर्क एज अ डायूरेटिक, बट प्लीज डोंट टेक इट एज अ ट्रीटमेंट। नहीं, प्रैक्टिकल चीज तो थोड़ा पता चलनी चाहिए ना, बिकॉज नो बियर इसे if I have an issue, probably you also have an issue, and अगर 3-4 लोग एग्री कर जाएं तो that means should be taken as one of the right practice to be followed. Yeah, Puri uncle, beer is a diuretic. Urine
का फोर्स बढ़ता है इससे। ये यूरिकाइन ये सैसे है, ये एक टाइम लेना 2 टाइम लो? I have to see your prescription, क्योंकि मैं ऐसे अभी आपको फिलहाल बता नहीं सकती, तो प्रॉब्ली संजना आपकी हेल्प कर देंगी, क्योंकि आपके ERM एक बार देख लेंगे तो उनसे मैं रिपोर्ट्स ले सकती हूँ, एक बार देख सकती हूँ, तो मैं एक बार संजना से कांटेक्ट कर लूंगी, फिर आई विल हेल्प यू आउट। कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? श्योर आंटी। एक तो है मेरा नींद बहुत ही कम है, तो जिसलिए इतना कम है कि मेरे घर में चोर भी आया था, मैं पकड़ लिया, चोर को मैं पकड़ लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पुलिस थाना वगैरह करने पड़ा, एंड देन आई हैव टू आइडेंटिफाई हिम। एक तो ये है, और एक ये है कि मेरा हस्बैंड का भी इन शुगर 25 में ड्रॉप कर गया, तो मुझे पता चली, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी नींद इतनी हल्की थी कि आई कुड मेक आउट दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, ही वाज मेकिंग सम साउंड फ्रॉम द माउथ, एंड आई देन सॉ दैट ये पसीना हो गया, जनवरी में सारे पसीना हो गया, फिर मैंने शुगर देखा 25 हो गया, देन इमरजेंसी कॉल किया और ग्लूकोज देने लगी, फिर ये, सो इट हैज सेव्ड मी। But one thing is that because I don't have very good sleep, I have to go again and again to the bathroom, and in the morning I cannot become so much fresh also. I feel like sleeping even now, you know, I've just my eyes are always closed. पहले थोड़ा सोऊंगी, फिर I'll take lunch. मतलब इतना ज़्यादा मतलब रात को नींद नहीं होता, तो doctor has given me some medicine Noxito Plus. So it is you are depression and then sleeping also. इससे थोड़ा सा बेटर हुई, बट मेरे कुछ भी होता है घर में, कोई कुछ खांसी कुछ भी हो रहा है, रात को बारिश शुरू हो गया, कुछ हो गया, मैं उठ जाती हूँ एकदम, और उसके लिए बाथरूम जाने पड़ता है बार बार। इतनी हल्का स्लीप है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मे बी समथिंग लाइक दैट। या सो आंटी, द मेडिकेशन विल ओनली हेल्प, क्योंकि आपकी नींद जब तक पूरी नहीं होगी, आप बीच में उठोगे और डेफिनेटली वो यूरिन वाला प्रोसेस आपका चलेगा ही। स्ट्रेस के लिए व्हाट आई कैन टेल यू इज कि आप, पता नहीं मुझे कि अगर आपने योगा या मेडिटेशन कभी ट्राई किया है कि नहीं किया है। वो तो मैं करती हूँ, रात को सोने के पहले गुरुजी का 108 बार नाम वगैरह लेके, मैं कभी भी सोती नहीं बिना ये लेके, करते करते थोड़ा सा आता है, लेकिन मैं थोड़ा ओके, सो मे बी आपके जो आप मेडिकेशन ले रहे हो उसके डोज में वो, अगर आप वापस एक बार कंसल्ट करोगे तो डोज थोड़ा सा ऊपर नीचे वो करके देंगे, क्योंकि मेडिकेशंस एक रेगुलर हम नहीं चालू करके रख सकते, उनका रिव्यू करवा के उसका डोसेज या फिर मेडिकेशन हमें वापस चेंज करना पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जिनको आपने दिखाया था उनको वापस एक बार दिखा के आप पूछ सकते हो, तो वो थोड़ा सा डोज आपका बढ़ा देंगे या फिर आपकी टैबलेट चेंज कर देंगे, तो उससे फिर आपकी स्लीप विल बी बेटर। Okay, thank you. Wonderful, beautiful talk. Thank you, Uncle. In case anyone has any more questions, Vijay sir, आपको कुछ पूछना है? Thank you very much, Prasita ji and Ram ji, for explaining it in a simple way. Thank you. Thank you, sir. और बड़ा फॉर्मली भी आपने बताया था। Okay, in that case, thanks Prasita and Ram. Do you want to say something on the concluding note, or is it okay? I'll otherwise wrap it up. Yeah. Yeah, I think we have like expressed whatever we want to say, and you know we also learned a lot of things. Okay, so thank you, Prasita. I believe it was a very fabulous show today. I mean, even I was listening to everything. It was like very fantabulous show, and the way you even explained everything was very clear and in very simple terms, no hardcore medical terms, and in very simplistic language you explained everything, and that was the best part about the show today. So I believe my elders also really loved it today. So thank you, Prasita and Ram, for being with us today, and definitely looking forward to your other shows also. Sure. Thank you so much. So, thank you. Bye. कोई नेक्स्ट सेक्शन किस चीज का आप ले सकते हैं अभी? आप बता दीजिए, if you want anything specific to know. You can tell her. We will definitely have one more session with them in August also is here. Maybe you can. जिस पे ज्यादा आप मतलब थोड़ा एक्सपर्टाइज हो, that will be much better off.
Sure, but if you want to know anything specific, you can tell Sanjana and we can take a session on that. Puriya, हाँ, मैं तो कहता हूँ लिवर के ऊपर थोड़ा सा अगर डिस्कशन एक दफा हो जाए तो ज्यादा बेटर है. Sure, we will consider. Yeah, this. yeah, that is also. Thank you very much. Thank you. Okay, bye. Thank Bye, you so Sanjana. much.